Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. This is class 5th, subject English, and today it is 24th of April 2001. And our topic is Birbal the Wise. Let us start. You took your textbook and page number 14. The two came to Birbal. When Birbal saw them, he asked Surya Singh what he could do for him. He heard the story of the horse from the prince and the traveler. Leave the horse with me, he said. Tomorrow I will give it to its owner. After both the men had left, Birbal told his servant to take the horse, follow the two men at a distance, then free the animal and see which one of the two it followed. Afterwards, he was to bring it back and put it in the stable with other horses of the same size and color. The next day, Birbal called Surya Singh and the traveler and took them to the stable. There were about a dozen horses of the same size and color. Your horse is here, said Birbal to the two men. The traveler could not recognize the horse, but Surya Singh found him at once. The horse knew its master too. This kind man, said Birbal to the traveler, offered you a ride on his horse and you tried to rob him. You shall get 50 strokes of the whip. Then he turned to the prince, Surya Singh. I already know your name and address. You know me. Then I thought it was a secret. I had heard you were a wise judge and I wanted to see you. I know you are the prince of Manipur, said Birbal. We have a large country to rule and it is our business to know who is coming. The government has arranged for your stay here. Surya Singh thanked him. There is one more thing, he said. I should like to know how you decide my case. Willingly replied Birbal. I knew who you were and realized you would not tell a lie. But I needed proof. My servant followed you both with the horse and set it free. It went after you, not the traveler. Then again the traveler could not identify the horse in the stable, but you had no difficulty. The prince was greatly impressed by Birbal's wisdom, and he knew he had found the right man to solve this problem. तो बच्चों, इस तरह आज ये कहानी ख़त्म हो गई, जिसका एक हिस्सा हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था। तो आज उससे आगे हमने पढ़ा। तो जो पहले हमने पढ़ा था उसका मैं थोड़ा आपको जल्दी बताऊंगा कि हमने क्या पढ़ा था। कि वो जो सूर्या सिंह था वो मणिपुर का प्रिंस था, शहजादा था। एक बार वो दिल्ली किसी खास मिशन यानी किसी सेक्रेट मिशन पर आ रहे थे। तो रास्ते में उसको एक कमज़ोर सा आदमी मिला तो और थका हुआ। तो सूर्या सिंह को उस पर तरस आ गया। उसने उसको कहा कि भाई आप यहाँ क्या करो। उसने कहा मुझे दिल्ली जाना है, शाम से पहले पहुँचना है, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो सूर्या सिंह को भी दिल्ली ही आना था। उसने सोचा चलो, सूर्या सिंह को रास्ता मालूम नहीं था। उसने सोचा चलो मुझे इसकी वजह से रास्ता पता चलेगा और एक नेकी भी हो जाए। उसको अपना घोड़ा दे दिया, कहा कि आप इस पर चढ़ो और मैं पैदल चलूँगा। और जब वो दिल्ली के गेट्स पर पहुँच गए, दिल्ली के दरवाज़ों पर पहुँच गए, तो ट्रैवलर ने कहा, तो सूर्या सिंह ने ट्रैवलर से कहा कि अब मुझे मेरा हॉर्स वापस चाहिए, मेरा घोड़ा मुझे वापस चाहिए। आप अपने काम से जाइए और मैं अपने काम से यहाँ से जाऊँगा। आपको शाम से पहले दिल्ली पहुँचना था, सो आप पहुँच गए। अब आप अपने काम पर जा सकते हैं। तो ट्रैवलर हैरानगी से बोला और वो बिगड़ गया। उसने कहा कि नहीं जी, हॉर्स कैसे आपका है? हॉर्स तो मेरा है, घोड़ा मेरा है, ये आपका नहीं है।
तो सूर्या सिंह जो था परेशान हो गया। उसने उसे कहा कि भाई मैंने तो आपको चढ़ने के लिए यहाँ तक दिया था, लेकिन आप तो बिल्कुल ही इनकार हो गए। उसने कहा नहीं, तो जो ट्रैवलर था वो घोड़ा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या सिंह ने उसकी लगाम पकड़ ली और कहा कि चलो पहले हम किसी तीसरे बंदे के पास या जज के पास, मुंसिफ के पास जाएंगे जो हमारा फैसला करेगा। तो दोनों लोग कहाँ गए? बीरबल के पास। यहां से शुरू होता है कि बीरबल द वाइज, कि बीरबल वाइज कैसे था। तो वो बीरबल के पास गए, दोनों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। तो बीरबल ने उनको कहा चलो ठीक है, कल मैं आप में से जिसका ये घोड़ा है उसको वापस दूंगा, फिलहाल आप इस वक्त जाइए, घोड़े को रात के लिए मेरे पास ही रहने दीजिए। तो उन्होंने घोड़े को वहां रखा। तो बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने घोड़े को, अपने नौकर को बुलाकर कहा कि इन दोनों के पीछे पीछे जाओ, लेकिन बीच में फासला रखकर और इस घोड़े को साथ ले जाओ, और थोड़ा सा फैसला तय करके घोड़े को छोड़ देना, फिर ये देखना कि ये किसके पीछे जाएगा। उसके बाद घोड़े को पकड़ के वापस ले आना। तो उसके नौकर ने ऐसा ही किया और फिर घोड़े को अस्तबल में रखा वापस। तो बीरबल ने क्या किया? उसने वहां पर 1 दर्जन घोड़े यानी 12 घोड़े तकरीबन और इसी रंग के, इसी साइज के उनके साथ रख दिए और उनको मिक्स किया। तो दूसरे जब ट्रैवलर और सूर्या सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर आ गए, तो बीरबल ने उनसे कहा कि भाई, पहले ट्रैवलर को कहा कि भाई आप इनमें से अपने घोड़े को पहचान लीजिए और निकालिए, लेकिन वो नहीं ऐसा कर सका क्योंकि उसको मालूम नहीं था। तो सूर्या सिंह जब आए तो उससे कहा कि आप अपना, उसने दूर से अपने घोड़े को पहचान लिया। तो बीरबल ने ट्रैवलर से कहा कि देखिए, इस शरीफ आदमी ने आपको घोड़ा दिया था सवारी के लिए, आपके साथ नेकी की थी और आप उसको लूटना चाहते थे, रोब, तो आप उसको लूटना चाहते थे। तो इस तरह सूर्या सिंह को घोड़ा वापस मिल गया। लेकिन सूर्या सिंह के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। उसने बीरबल से कहा, आप मुझे बताइए कि आपने कैसे फैसला किया, आपको कैसे पता चला? मुझे तो घोड़ा मिल गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बीरबल को पता था कि ये जरूर मुझे ये आखिर पर पूछेगा ही। तो उसने कहा, मुझे पता है जनाब कि आप, मैं आपको पहचानता भी हूँ, आप सूर्या सिंह है, आप मणिपुर के प्रिंस हैं। तो हम इतने बड़े मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, हमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि हमने कैसे किया। तो उसने उसको पूरी कहानी बताई कि कैसे मैंने अपने नौकर को आपके पीछे लगा दिया, फिर घोड़े को भी, घोड़ा हमेशा अपने मालिक के पीछे पीछे जा रहा है, और यहाँ पर भी हमने कैसा किया। तो सूर्या सिंह बड़े इम्प्रेस हो गए और उसने बीरबल से कहा कि मैंने सिर्फ तो सुना था इतना कि बीरबल बहुत चालाक है, वाइज है, दानिशमंद है, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देखा। इस तरह इस कहानी का ये कहानी ख़त्म हो गई। और इस कहानी से आपको अंदाज़ा हो गया कि बीरबल द वाइज इसको क्यों बोला गया है। तो इस कहानी जितना जो स्टंजाज हमने पढ़े, इसमें कुछ वर्ड्स आ गए: डाउट, एडवांटेज, रेन, स्टेबल, रिकॉग्नाइज, ऑफर, रो। डाउट का माने होता है शक, किसी पर शक करना। एडवांटेज होता है फायदा उठाना, किसी चीज से फायदा उठाना, दैट्स कॉल्ड द एडवांटेज। और रेन मीन्स लगाम लगाना, यानी घोड़ी की वो जिसको कहते हैं हम। और यहाँ पर स्टेबल है, स्टेबल मीन्स अस्तबल जिसमें घोड़े को रखा जाता है। रिकॉग्नाइज पहचानना, ऑफर पेशकश, रो मीन्स लूटना। इसके अलावा 2 क्वेश्चन भी मैंने इसमें निकाले हैं और उनका आंसर भी यहाँ पर लिखा है, सॉल्व किया हुआ है। आप इसको फिर अपनी कॉपी पर भी नोट कीजिएगा, साथ साथ इन वर्ड्स को भी लिखिएगा, और ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिखे उनको भी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और याद कीजिएगा। क्वेश्चन जो पहले हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें एक क्वेश्चन पहले ही किया था, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हाउ डिड सूर्या सिंह हेल्प द ट्रैवलर? सूर्या सिंह ने उस ट्रैवलर अजनबी को, जो मुसाफिर था, उसकी मदद कैसे की? तो सूर्या सिंह गेव हिज हॉर्स टू द ट्रैवलर टू राइड ऑन। तो सूर्या सिंह ने क्या किया? उसने अपना घोड़ा उसको दिया चढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द 2 men go to settle the dispute? 2 लोग जो थे, यानी जो सूर्या सिंह प्रिंस ऑफ मणिपुर और ये ट्रैवलर, ये कहाँ गई अपना फैसला कराने के लिए?
The two men went to the Birbal to settle the dispute. ये दो लोग बीरबल के पास गए अपना मसला हल करवाने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।